Hello, students. Hope you all are healthy with a good health, sound mind. Welcome to class 10 Civics. The topic is a chapter power sharing. The subtopic will be the accommodation in Belgium. Fine. Myself, Mrs. Rama Barbary. I'll be teaching you the civics accommodation in Belgium. Accommodation in Belgium. Now I'll be seeing the map of the Belgium on your screen. Flemish region, Walloon region, and the Belgium, and blue spot you can see the Brazil. Fine. Ethnic composition, though we have already done it, I've told you in the previous videos also. Fine, but I'll just repeat it, review it for you. The ethnic composition. Belgium has two regions, North region, Flemish region. 59% Belgian speaks Dutch language. South region, Wallonia region, 40% Belgian speaks French language. East South region, 1% of Belgian they speak German language. Fine. So this is the ethnic composition of the Belgian. In a previous video we have discussed about the ethnic composition of Sri Lanka and the problems over there due to the language. The language problem brought them to the civil war. Now let us see in this topic accommodation in the Belgium. What was the condition of Belgium? Even here also two language people, so three language, German, Dutch and the French. फाइन, तीन भाषा को जानने वाले लोग यहाँ थे और तनाव था इन लोगों के बीच में। लेकिन किस तरह से बेल्जियम के बड़े बड़े लीडर्स ने, लोकल लीडर्स ने इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करी। हाउ जेंटली दे हैव डन इट, एंड दिस इज अ बिग एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड। लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी could take the advantage of its numeric majority and force its will on the French and the German-speaking population. This would push the conflict among the communities further. This could lead to very messy partition of the country. Both the sides could claim the control over Brussels. ठीक है, क्योंकि आप देखिए बेल्जियम में पूरे कंट्री में दबदबा किसका था? डच लोगों का। लेकिन बेल्जियम के ही कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में किसका दबदबा था? फ्रांसीसियों का। ठीक है, तो एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप थे। लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे, आप पॉइंट्स देखिए जरा अपने स्क्रीन पे। बेल्जियम लीडर्स टुक डिफरेंट पाथ टू रिकग्नाइज द प्रॉब्लम। किस तरह से उन्होंने रास्ता निकाला बेल्जियम के लोगों ने, उनके बड़े लीडर्स ने, लोकल लीडर्स ने किस तरह से उन्होंने सोचा समझा और इनोवेटिव आइडियाज़ को उन्होंने डेवलप करा। और कितनी बार एक मतलब कि उन्होंने यहाँ तक करा कि मतलब कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था उसमें 4 बार चेंजेस लाए वो लोग। 1970 से लेके 1993 इतने सालों के दरमियान में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस लाए, अमेंडमेंट किया, सुधार किया। सिर्फ किस बात के लिए? कि बेल्जियम में किसी तरह का तनाव ना हो। दोनों भाषा के ज्ञाता जो हैं, दोनों भाषा को जानने वाले लोग, दोनों कम्युनिटी के लोग, डच
कम्युनिटी एंड फ्रेंच कम्युनिटी, इवन द जर्मन कम्युनिटी के लोग, सभी लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, ठीक है। क्योंकि फाइनली लॉस जो है वो कम्युनिटी का तो होता ही होता है, पूरी कंट्री का होता है। तो इस बात को वो लोग समझ चुके थे। Right? The Belgium leaders took a different path. They recognized the existence of the regional differences and the cultural diversities. ठीक है, जो दोनों तीनों कम्युनिटी के लोगों के जो कल्चरल डिफरेंसेस थे, लैंग्वेज डिफरेंस थे, उनके ओपिनियन अलग अलग थे, उस चीज़ को पहचाना, उस चीज़ को जाना, और ये देश की तरक्की में इनका कितना हाथ है उस चीज़ को भी समझते हुए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार जो है ना 4 बार उन्होंने एक चेंज लाने की कोशिश करी, अमेंडमेंट किया। बिटवीन 1970 एंड 1993 they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. And the arrangement they took out is different from any other country and very innovative. Very interesting one कि कितना बढ़िया इनोवेटिव स्टेप उन्होंने लिया। Fine. And here are some of the elements of the Belgian model which we are going to discuss it. Fine. Number 1, Dutch and the French speaking ministers will be equal in number in central government. Are you getting me or not? The Belgium leaders, they took a different path. They recognized the existence of the regional differences and the cultural diversities. Fine. So the innovative step which they have taken was the constitution prescribed that the Dutch and the French speaking minister shall be equal in the central government. They will be equal in the central government, and no single community can make decision unilaterally. Fine. कोई मनमानी नहीं कर पाएगा अगर इक्वल नंबर में हैं। जैसे द कैपिटल सिटी में जो ब्राज़ील था वहाँ पे भी इक्वल कर दिया, एंड पूरे कंट्री में भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कर दिए, रिप्रेजेंटेटिव्स कर दिए। अगर कहीं पे भी एक कम्युनिटी डोमिनेटिंग हो जाती, मेजॉरिटी में हो जाती, तो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग होती, ठीक है, और फिर दूसरे वाली कम्युनिटी वालों को बुरा लगता तो कहीं ना कहीं जो है स्ट्रेन रिलेशनशिप होते, तनाव होता, रिवोल्ट्स होते, जिसका असर जो है वो डायरेक्टली कंट्री के इकनॉमी में पड़ता है, पॉलिटिकल कंडीशंस पे पड़ता है, समाज पे, कम्युनिटी पे, सोसाइटी में, सब जगह सब डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, बैलेंस एकदम बिगड़ जाता है। Now the second point, the second innovative steps, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। The state government were given the power by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो मैक्सिमम पावर जो स्टेट गवर्नमेंट को दी। फाइन। और इसके साथ साथ आप ये देखिए, बहुत बड़ी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट द सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबॉर्डिनेट आप मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को एक पावर पूरी दे रहा है, ठीक है, उसको अपना सबॉर्डिनेट बना के नहीं, अपने अंगूठे के नीचे रख के नहीं, मतलब कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही आपने करना है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है वैसे ही करना है, नहीं, इनको कंप्लीट। क्योंकि हर स्टेट की, आप हिंदुस्तान में भी देखिए कि मध्य प्रदेश की अपनी प्रॉब्लम है, उनकी स्टेट गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम को अलग तरह से शॉर्ट आउट करती है। कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग जो हैं उनकी अलग प्रॉब्लम होती है, मछुआरों से लेकर के होती है, ठीक है, समुद्री तूफान आते हैं उनसे लेकर के होती है, तो वो लोग उस बात से निपटते हैं। तो उनको सबको पावर दी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है कि लुक आफ्टर द प्रॉब्लम्स ऑफ योर ओन स्टेट। फाइन।
ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा मतलब कि बेवजह का इंटरफेरेंस या डोमिनेशन नहीं है। तो आप यहाँ पे बेल्जियम में भी देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंप्लीट पावर दी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जितना मतलब कि आप स्टेट गवर्नमेंट को पावरफुल करेंगे उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट आपका पावरफुल होगा। पावर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में कंसंट्रेट कर लेगी तो फिर वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है जो होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आज के मॉडर्न टाइम में। तो ये वाला बहुत अच्छा स्टेप था, इनोवेटिव स्टेप था बेल्जियम में कि स्टेट गवर्नमेंट वाज गिवन द कंप्लीट पावर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो उनके सबॉर्डिनेट होके काम नहीं कर रहे थे, वो इंडिपेंडेंटली जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। ठीक है, मतलब वो ये काम करेंगे अच्छी तरह से, तभी कंट्री में एक पीसफुल माहौल बनेगा। फाइन, मेनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट have been given to the state government of the two regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. They are not the subordinate of the central government. Fine. देखो ये कितनी अच्छी तरह से इन लोगों ने स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक तालमेल रखा, इक्वलिटी रखी। ठीक है, अगर बाई चांस अगर जैसे आप ये देखो कि पूरे देश के अंदर, पूरे बेल्जियम के अंदर डच स्पीकर्स ज़्यादा थे, डच कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे। ठीक है, अब वो 59%, 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे और 1% जो जर्मन स्पीकिंग वाले थे, जर्मन कम्युनिटी के। अगर यही रेशियो लेकर के चलते, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो मतलब कि बात बनती नहीं बिल्कुल भी। कोई भी मेजॉरिटी में जो आ जाता है, तो अगर डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी कई बार इस तरह की चीज़ें नज़र आ जाती है कि जो मेजॉरिटी में होते हैं वो माइनॉरिटी के बातों को डिसरिगार्ड कर रहे होते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, उनकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही मैक्सिमम पावर अगर आ जाती है, ठीक है, तो एक तो वो डिक्टेटरशिप में काउंट हो जाएगी। डिक्टेटर मतलब कि रूलर हो गया, डिक्टेटर रूल हो गया, तानाशाह हो गए। ठीक है, और अगर आपने इक्वली डिवाइड कर दिया है, सारे पावर्स जो है आपने मतलब कि दिए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट को फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट, whether they belong to any community, whether they belong to any language community, किसी भी कल्चर को, किसी भी लैंग्वेज को वो जानते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आपका स्टेट डेवलपमेंट होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो स्टेट गवर्नमेंट, इट वाज गिवन द कंप्लीट पावर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर मतलब कि अपने एक्शन में इस बात को रखा कि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट द सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे में क्या होता है कि एक पीस, एक हार्मनी एक बनी रहती है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो है कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि बहुत पावरफुली परसेंटेज में ज़्यादा गवर्नमेंट में, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में आ जाता है, तो वो नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। ये जब कब होता है, जब आप एक हार्मनी, एक पीस और इक्वलिटी को लेकर के चलते हैं। फाइन, अदरवाइज जो मेजॉरिटी में है कहीं ना कहीं उसके डिसीजन इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि माइनॉरिटी ग्रुप को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को वो हर्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा बेल्जियम के लीडर्स ने, और इस तरह का उन्होंने सिस्टम बनाया। फिर थर्ड आप इनोवेटिव आइडिया देखेंगे, Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. Fine, Brazil had a separate government. अब ब्राज़ील की बात हम क्यों कर रहे हैं? अभी तुम बेल्जियम कर रहे थे ना। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की, वो कैपिटल सिटी है।
ठीक है। जैसे इंडिया में दिल्ली है, ठीक है, कैपिटल सिटी। अब कैपिटल सिटी जो हमारी दिल्ली है, तो दिल्ली के अंदर भी आप देखेंगे कि दिल्ली की अपनी सरकार है कि नहीं है, दिल्ली सरकार है कि नहीं है ना। तो दिल्ली वासियों के डेवलपमेंट की वो बात करती है, ठीक है। तो वैसे ही ब्राज़ील में भी जो है उनकी अपने सेपरेट जो है अलग से एक गवर्नमेंट है, ठीक है। तो और वहाँ पे भी उन्होंने क्या करा, एक बहुत अच्छा काम करा। जैसे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने इक्वल रेशियो रखा मिनिस्टर्स का, दोनों कम्युनिटी के, चाहे फ्रेंच कम्युनिटी के थे, चाहे वो डच कम्युनिटी के थे, ठीक है। इन सब के नंबर्स क्या थे, एकदम इक्वल थे, जिससे कि कोई किसी पर हावी ना हो, ठीक है। मेजॉरिटेरियनिज्म का बोलबाला ना हो कि हम मेजॉरिटी में हैं तो हम जैसा चाहेंगे वैसा रूल करेंगे, हमारी मर्जी, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं, ठीक है। तो उन्होंने वो फंडे का रखा ही नहीं, इस बात को रखा ही नहीं। तो सेम चीज़ जो है ब्राज़ील में भी हुई, ठीक है। ब्राज़ील में क्या हुआ कि सेपरेट गवर्नमेंट जो है वहाँ पे भी दोनों कम्युनिटी के लोगों ने सेम इक्वल नंबर के रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे रखा, ठीक है। ब्राज़ील हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट in which both the communities have a equal representation. ब्राज़ील में फ्रेंच स्पीकिंग वर इन मेजॉरिटी। अब याद रखिए जरा इस बात को, पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में कौन है, कौन था, डच। अब ब्राज़ील में कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग, दे आर इन मेजॉरिटी। लेकिन देखो इन्होंने एक्सेप्ट किया, बट दे एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ब्राज़ील में फ्रांसीसी स्पीकिंग ज़्यादा थे, तो उनको तो मतलब कि बहुत अच्छा मौका था कि भाई नहीं ठीक है, हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा है तो हमारे मिनिस्टर्स भी ज़्यादा होंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब बनी तो वहाँ पे भी इक्वल थे मिनिस्टर्स, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स थे डच स्पीकिंग के, ठीक है, डच कम्युनिटी के और फ्रेंच कम्युनिटी के लोग। तो ये इन लोगों की एक भावनाएं थी फ्रांसीसी कम्युनिटी की कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रखा तो इसका मतलब कि आपने क्या करा, डच कम्युनिटी वालों ने सेक्रीफाइस करा, ठीक है। किसके लिए करा, फ्रांसीसियों के लिए करा, फ्रेंच स्पीकर्स के लिए करा, ठीक है। तो फ्रेंच कम्युनिटी के लिए अगर इतना बड़ा सेक्रीफाइस करा है तो ब्राज़ील में कैपिटल सिटी में ब्राज़ील में हम भी ये सेक्रीफाइस करेंगे। डच कम्युनिटी मेजॉरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट में होंगे वो इक्वल होंगे, है ना। कितना अच्छा आइडिया, इनोवेटिव आइडिया। बेल्जियम ने इस स्टेप को लिया एंड वेरी सक्सेसफुली दे हैव रन इट बिकॉज द डच स्पीकिंग, क्यों नहीं करा, फिर से बता रही हूँ मैं आपको, द फ्रेंच स्पीकिंग वर इन मेजॉरिटी इन ब्राज़ील बट दे एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। व्हाई, दिस क्वेश्चन राइजेस हियर, because the Dutch speaking community who were more in the number, they were in the majority in the country, has accepted the equal representation in the central government. Is it clear? Okay, now let us come to the fourth innovative idea, the fourth innovative step taken by the Belgium leaders, the third type of government. The third type of government, देखो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हम हिंदुस्तान में भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, सभी लोग सुनते हैं, ठीक है। तो वो क्लियर है ना। अच्छा, तो थर्ड कम्युनिटी कहाँ से आ गई, गवर्नमेंट कहाँ से आ गई, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ठीक है। कम्युनिटी से समझ में आ रहा है ना कि फ्रेंच कम्युनिटी, डच कम्युनिटी, जर्मन कम्युनिटी, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी जिसको बेल्जियम में क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इनका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जैसा हिसाब किताब नहीं है, उनका अलग है। अब ये किस चीज़ के लिए काम करते हैं, उनका तो एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो ये लोगों का क्या काम है, ठीक है। The third type of government, the community government, means apart from the central and the state government, okay, there is a third kind of government. This is the third type kind, okay.
In community government, uh, it is elected by the community government. It is elected by the people belonging to one language community. ठीक है, सपोज आप डच कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो डच कम्युनिटी वाले क्या करेंगे, अपने डच लीडर्स को, डच रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। वैसे ही फ्रेंच कम्युनिटी वाले फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, जर्मन कम्युनिटी वाले जर्मन रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स को अपने चुनेंगे। ठीक है, नो मैटर वेयर दे लिव, वो पूरे मतलब कि बेल्जियम में वो कहाँ पे रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनको कम्युनिटी से मतलब है। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बनी है, इसका मेन पावर क्या है? गवर्नमेंट हैज़ अ पावर regarding the cultural, educational and the language related issues। ठीक है, तो लैंग्वेज से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड जो भी इनके डेवलपमेंट्स हैं या कोई भी जुलूस है, जलसे हैं, कोई भी प्रोग्राम है, तो ये लोग अपना उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके डेवलपमेंट के लिए किसी की भाषा है, कल्चर है, उनके कस्टम है, ठीक है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे जीवंत रखना है, अपने ट्रेडिशन को और ट्रेडिशन को साथ लेते हुए जो है मॉडर्न टाइम में और जिस देश में वो लोग रह रहे हैं उसके साथ मिलके कैसे चलना है, तो वो सारा इशू जो है वो आपकी वहाँ पे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट शॉर्ट आउट करती है। दे लुक आफ्टर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। फाइन, इज इट क्लियर टिल हियर? Now the last point you can see on the screen is the Brussels was chosen as a headquarter for the European Union. That's a big achievement, marvelous achievement for the Belgium कि ब्राज़ील को यूरोपियन यूनियन ने उसको हेडक्वार्टर की तरह उसको चूज़ किया। फाइन, अब ऐसा क्यों हुआ? जस्ट थिंक ऑफ इट। फाइन, you might find that the Belgian model is very complicated. It indeed is very complicated, even for the people living in Belgium. But these arrangements have worked out so well, so nicely. this arrangement जो उन्होंने अलग अलग कम्युनिटी को एक साथ लेकर के चले, इक्वल राइट्स देके, इक्वल नंबर जो है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में देके कम्युनिटी गवर्नमेंट उन्होंने अलग बना दी। ठीक है, सब कुछ उन्होंने आसान कर दिया। दे हेल्प्ड to avoid the civic tariff between the two major community and a possible division of the country on the linguistic line। भाषा को लेकर के नफरत की भावना आए, इससे पहले किसी भी तरह का कोई सिविल वॉर हो जाए जैसे श्रीलंका में हुआ। ठीक है, देखो नफरत किसी भी चीज़ को लेकर हो, उसका अंत जो है ना बेटा बहुत ख़राब होता है। नफरत किसी भी बात को लेकर हो, और ये तो देश है, भाषा है, इस बात को लेकर के अगर लड़ाई झगड़े, जैसे श्रीलंका में कितना सैड एंड हमने देखा, ठीक है, कि कितने खून खराब हुए। ठीक है, सो ये जो अरेंजमेंट इन्होंने किया, इतना इनोवेटिव आइडियाज़ ये लोग जो लेकर आए बेल्जियम्स के लीडर, इट हेल्प टू अवॉइड द सिविक टैरिफ between the two major community, the French speaking people, the French community and the Dutch community, Dutch speaking people। इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का मतलब कि एक गलत माहौल बनने से उन्होंने रोक लिया। ठीक है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अच्छा, अब ये जो ब्राज़ील को चूज़ किया एज ए हेडक्वार्टर, ये क्या चीज़ है? When many countries of the Europe came together to form a European Union, Brazil was chosen as its headquarter। इसको चूज़ किया इन्होंने, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा। आप देखेंगे when the Belgium people in Belgium, the leaders have realized that the unity of a country is possible only by
respecting the feeling and the interest of the डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, डिफरेंट क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो 100% जो है प्रॉब्लम्स आएंगी। फाइन, 100% आएगी, क्योंकि जो हमने अभी देखो 2 स्टोरीज़ को हमने पढ़ा, बोथ आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, श्रीलंका एंड बेल्जियम बोथ. What we have learned from these stories, the Belgium and Sri Lanka, yet they deal with the question of the power sharing differently. दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों जगह इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, और एक जगह आप देखिए श्रीलंका में किस तरह का माहौल क्रिएट हुआ, सिविल वॉर तक आ गए. सिविल वॉर, यूर अंडरस्टैंडिंग, कि देश, अपने ही देश के लोग अपने ही देश की धरती पे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, मार धाड़ मच गई, खून खराबा हो गया. फाइन. तो ये जो चीज़ें थी बेल्जियम में, लीडर्स दे रियलाइज्ड इट कि देखो, एक तो इकोनॉमिक डाउनफॉल होता ही होता है, समाज राजनीतिक तौर से हर तरह से बैलेंस बिगड़ जाता है, उसको अवॉइड करना था. The leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and the interest of different communities and the region. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangement for sharing power. I hope that now the meaning of power sharing क्लियर हो रही है, आपको क्लियर हो रही है ना, कि अगर एक ही भाषा, एक कंट्री में एक भाषा के जानकार हैं और दूसरे भाषा के भी जानकार हैं, कुछ कम हैं कुछ ज़्यादा हैं, तो इंस्टेड ऑफ लेग पुलिंग, बुलिंग या मेजॉरिटरिज्म शो करने के बजाय हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की भाषा को, कल्चर को, उनके कस्टम्स को, ठीक है, उनके तीज त्यौहार को, हर चीज़ को उनके ना रिस्पेक्ट की निगाह से देखें, ठीक है, तभी देश तरक्की करता है और शांति रहती है. फाइन. तो जो ये अरेंजमेंट जो है पावर शेयरिंग का जब बनाया गया बेल्जियम में, तो दोनों कम्युनिटी ने बड़े ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट भी किया. दैट इज़ ऑल्सो प्लस पॉइंट. दोनों ने एक्सेप्ट किया, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, हम नहीं एक्सेप्ट करते इस चीज़ को, ये वाली फीलिंग नहीं थी. लेकिन आप देखेंगे उसके कंट्रास्ट में जो है श्रीलंका में क्या हुआ. इट शोज अस दैट इफ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेशन या डोमिनेंस ओवर अदर एंड रिफ्यूजेस टू शेयर द पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री. यूनिटी ऑफ द कंट्री हर्ट होती है. इस चीज़ को, ये हमको बहुत बड़ा लेसन मिल रहा है कि अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो यूनिटी ऑफ द कंट्री जो है वो थ्रैश डाउन हो जाएगी. फाइन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. रीड द एनसीईआरटी बुक प्रॉपरली. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द टॉपिक. Read your book properly. Thank you.